this very special edition of Budget Expectation और मैं आ गई हूँ मिलेनियम मैम्स की एक्सपर्ट्स के साथ। मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि धानुका जी जिस तरह से महिलाओं को ट्रेन करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, उनकी आर्थिक आज़ादी के लिहाज से, वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी शुरुआत भी है। एंड वी आर लुकिंग एट द इम्पैक्ट ऑल्सो। आई हैव दीज लवली लेडीज विथ मी who are not only going to talk about their budget expectation but will also share the investment journey with me. So let's begin, and this is our ladies special on budget expectation. And okay, so let's start with you. What are your demands and expectations from the finance minister? This is going to be the first full budget of the new government. Thank you, Kavita. Thank you very much. आपने हम मिलेनियम मैम्स को इस मंच पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कविता, आई एम अ हाउस वाइफ, एंड जैसे हर हाउस वाइफ करती है, आई एम वेरी केयरफुल विथ माई एक्सपेंसेस, विथ माई इनकम। बजट को बहुत अच्छी तरह मैनेज करती हूँ। सो दिस ईयर आई एम क्लोजली वॉचिंग द फिस्कल डेफिसिट। एज अ कॉमन मैन हमारे बहुत डिमांड है। वी वॉन्ट मोर जॉब्स, वी वॉन्ट मोर ग्रोथ, एंड हाथ में भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो ये देखना चाहते हैं और ये उम्मीद है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ये साल एक्सपेक्टेशंस भी मीट करेगी और अपने फिस्कल डेफिसिट में भी डेंट नहीं आने देगी। आप इन्वेस्ट करती हैं? हाँ, सो कविता, एज एन इन्वेस्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to see a stable economy, a growing economy, and I feel the fiscal deficit plays a very important role. और मुझे ये लगता है ये साल fiscal deficit will be projected at 4.6%. All right, let's see how it comes. Your expectations? Shweta just spoke about stability, and I think that's very important. So I think जो सीतारमन जी ने last year long term capital gains को किया और short term capital gains, I would like to see stability. 10 से 12 हर साल चेंज नहीं करें, सारे बार। सो वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्पेशली निवेश के लिए, जैसे आपने कहा। सो वी आर ऑल इन्वेस्टर्स हियर, एंड दैट आई थिंक इज़ अ बिग डिमांड फ्रॉम अस कि सम स्टेबिलिटी, इतना हर बार बदलाव नहीं हो। राइट, आई एम श्योर इवन द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग द सेम। व्हाट अबाउट यू, मैम? I think yes, on the same lines, I would say that, currently there are two tax regimes offered, the old and the new. Right. Now, instead of giving us the flexibility, it causes confusion because the taxpayer को हमेशा लगता है which regime is better, मेरे लिए कहाँ मैं पैसे और बचा सकते हैं. So I think if, there is one unified tax regime instead of this optional dual kind of a thing, it will really help and simplify the tax structure. And currently for me, I am following जो new tax regime है, but I always feel that if I had a few more deductions which were available in the older tax regime, that would help. That will make it more attractive, you think? Yes, far more. Yeah. And I think even for global investors, a unified tax regime gives you a very good, in terms of stability and structure, it definitely helps. We are seeing a lot of people, being on board with the new tax regime, but yeah, we really need to make it more attractive by having few more benefits. Or just have one unified tax regime where you have like the best of both and everyone follows that. हर आम taxpayer की यही demand है। तो हाँ, मैं कुंती से अग्री करती हूँ। तो जैसे मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हूँ, तो अभी न्यू टैक्स रिजीम में हमारे पास डिडक्शंस नहीं हैं। तो एंड दिस हेल्थ, एवरीबडी नोज इट इज़ सो एक्सपेंसिव। सो मैं चाहती हूँ कि हेल्थ को हम इन्फ्लेशन से लिंक करें और जो ATD की एग्जेम्पशंस है उसको और बढ़ाए, एंड इवन ATDD विच इज़ जस्ट 1 लाख विच शुड ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। So ये हमारी डिमांड है फाइनेंस मिनिस्टर से। Medical inflation is going by what, 12 to 15% every year? It is too much. So it's too much. Yeah, so even if you're saving, everything goes in the medical expenses. चलिए आप बताइए। मेरी डिमांड है, रिक्वेस्ट है निर्मला जी से, थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट का बजट इंक्रीज करने के लिए। वी हैव सीन LIC एंड partial sale of LIC and how the sale of Air India, privatization of Air India has been successful, but around 50% has been used in the last budget, and this can bring economic stability. The funds, the extra funds can be monetized, used for infrastructure, health. And as an investor, it gives me more confidence in my investments, in the economic growth of the country. And I feel even banking, banks like IDBI, that will help. If they are privatized, it will probably make India global banking system. We will get the global banking system here. Right.
So there's interesting to use. see all these women investors talking about divestment, talking about investments. I mean, not that ये हम नहीं देख रहे हैं हमारे देश में, but then हाँ उतनी तेजी से नहीं देख रहे हैं जितना तेजी से होना चाहिए. But yeah, all of you are very inspiring. Trust me. Thanks to our training, and you know, we're trying to learn. I'm a first-time investor. I'm a Okay. designer, so I have no background of finance or whatever. But you know, it's been thanks to these sessions with Dhanuka sir, I've really been able to at least take care of my own, Sure. you know, investments. Investment, yeah, looks like दिख रहा है वो. आप बताइए. थैंक यू कविता। इस बार के यूनियन बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। जो देश में भारत सरकार के पास काफ़ी सरप्लस लैंड है। अब आप पूछेंगी सरप्लस लैंड किधर है? सरप्लस लैंड मतलब जो रेलवे लैंड है, जो रेलवे लैंड बुधवार पार्क में जो हमारे पास लैंड एक्सेस लैंड है, जो अंडर यूटिलाइज्ड है, जो इतना उपयोगी नहीं है, वो बैंक उसका एक और बहुत सारी डिफेंस लैंड हैं, बहुत अलग पीएसयू लैंड है हमारे पास जो सरकार के पास जो यूज़ नहीं, अंडर यूटिलाइज्ड है फ़िलहाल, उसको इकट्ठा करके एक लैंड बैंक बनाया जाए। तो ये एक सुझाव है, और जब वो लैंड बैंक जब बन जाए तो उसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यूज़ करें। सो ये एक सुझाव है हमारा बहुत अच्छा। सरकार के अफोर्डेबल लिए। हाउसिंग पर सरकार का जोर Yes, भी है. जैसे तो बिल्कुल. पीएम आवास योजना जो 2015 में जो स्कीम आई थी, इस प्रकार की नई नई स्कीम्स अगर सरकार और इम्प्लीमेंट कर सके तो इस बार के बजट में हमें सरकार से यही सुझाव है। थैंक चलिए, यू। बहुत बढ़िया. आप बताइएगा. कविता, मैं बात करना चाहूँगी सेक्शन 24B की, जो है डिडक्शंस ऑन होम लोन इंटरेस्ट। सो जैसे हमें पता है कि न्यू टैक्स रेजिम में ये डिडक्शन हटा दिया गया है, पर अगर हम देखें तो कोविड के बाद 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है कि होम सेल्स में 4% की गिरावट आई है। सो मेरी रिक्वेस्ट है फिनेंस मिनिस्टर से कि ये डिडक्शन को न्यू टैक्स रेजिम में ऐड किया जाए और इसकी लिमिट भी बढ़ाई जाए, ताकि हम अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग को प्रोत्साहन दे सकें और उसमें हमें बढ़ोतरी दिखे, ताकि वो और ज़्यादा हमारा इंक्रीज़ हो पाए। मेरे ख्याल से जो भी लोगों के पास होम लोन है, और ये तादाद बहुत बड़ी है हमारे देश में, उन सभी की यही डिमांड है. इनफैक्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस बेनिफिट इन द न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो इज देयर इन द डिमांड्स. आप बताइएगा. थैंक यू कविता। मैं कंजम्पशन की बात करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि हाल ही में इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, कंजम्पशन स्लो हो रहा है। सो हमारा कहना है कि समवेयर इन द बजट वी वांट टू सी अ बूस्ट टू द कंजम्पशन। लोगों के हाथों में अगर पैसा आएगा तो कंजम्पशन को एक बूस्ट मिलेगा। एंड एज अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले। इससे लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के सैलरी हाइक्स होंगे, एंड दैट विल हेल्प ब्रिंग मनी बैक इनटू द कंज्यूमर्स हैंड, एंड दैट विल हेल्प विद द कंजम्पशन, एंड इट विल गिव इकोनॉमी अ बिग बूस्ट. थैंक यू. ऑलराइट, मेरे ख्याल से सबकी डिमांड्स एक्सपेक्टेशंस तो मैंने जान ली. आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं ऐड करना चाहती हूँ जो अर्पिता ने कहा कि आई थिंक एग्रीकल्चर ऑल्सो नीड्स a lot to happen. Again, it's one of our favorite topics in Millennium Mams. Okay. But I think कि we've been waiting for very long, and अभी नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं. We have huge expectations. So hopefully the finance minister and him have worked out something for the new budget. हाँ, बिल्कुल इंतजार रहेगा उस तरह के ऐलान का भी. लेकिन चलिए अब एक आखिरी राउंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड लेट्स डू लाइक अ रैपिड फायर. ओके, इफ यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाट वुड बी दैट वन चेंज जो कि आप देखना चाहेंगी या जो कि आप करेंगी? लेट्स स्टार्ट विथ यू. I would reduce taxes for women and encourage them to invest in the markets. A lot of yay for that. I would say infrastructure is another thing which has slowed down, maybe because of the multiple elections we've had last year. But I think that is something we are looking forward to, gaining traction. Perfect. For me, I feel there is a gap between unemployment and need for skilled labor. So if the finance minister can do something where this gap is filled, I think that will really work wonders for the country. Interesting, very interesting. So I would say the HRA exemption in the new tax regime. I love you. Yes, yes, please. So I would focus on financial literacy for rural women, because That's needed. yes, I think we urban काफी women हद are तक तो आप ही लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हाँ, सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए. वेरी इंटरेस्टिंग.
Yeah, on similar lines, I would also say the same thing. More and more job creation for women workforce को बढ़ावा देना चाहिए. हाँ, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए Correct, कि हो रहा है कि नहीं हो absolutely, रहा है. Absolutely, Right? that is also important. आई वुड वांट होम लोन का जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है उसका भी डिडक्शन मिलना चाहिए. ये दिल मांगे मोर. I would want something more from Skill India initiative, Right. so that we improve our talent pool, and that will actually give a economic boost. Wonderful. So lovely women I've got and very interesting points. और देखना होगा कि बजट में अब क्या कुछ आता है. But thank you so much all of you for giving this time to ET Now and ET Now Swadesh for this interaction. Thank you so much. And yeah, all the best to all of you. Thank you. That will be all. Thank you so much for watching.